Thank you for having me to share my thoughts. My name is Umair Tariq Bajari. I'm currently serving as SP Jamshed District East Karachi. I'm basically from UC Bajara District Jamshoro. I was brought up and born in Hyderabad, तो मेरी इब्तदाई तालीम और प्राइमरी एजुकेशन वो हैदराबाद से ही हुई है. I did my primary schooling in Beacon House school system until 7th, and then because my father wanted me to do O levels and A levels, और उनको था कि I should go abroad for further studies, तो 7th तक मैंने वहाँ पे की. और उसके बाद because I was an average student until then, तो the principal and all that in Beacon House, they said कि भाई he is not capable to do O levels there. तो उन्होंने कहा कि भाई he should either do metric system or he should go to another school. So we moved to Sargodian Spirit Trust Public School, Rashidabad, which is an Air Force school. It was newly inaugurated then. I was the second batch there. So mashallah से from being an average student when I went there, O levels के मैंने वहाँ पे 12 exams दिए and I scored 9 A stars and then 3 Bs. तो माशाल्लाह से वो जो 3 साल मेरे गुजरे वो एजुकेशन के हवाले से मेरा there's a self learning process. You get to self learn yourself from people calling you average to being when you work hard and when you think about it तो आप कैसे करते हैं उस तरीके से. फिर I overperformed there. मैंने the same principal in Beacon House that said कि I was an average student, she called my father and said कि we want your son for A levels as well on scholarship, 100% scholarship. तो उस टाइम पे that was one of the proudest moments of my life कि जो है मेरे फादर को when they said कि he's average, calling them back and saying कि अब हमें ये बच्चा चाहिए on scholarship कि हमारे पास A levels करे. Well, that was really good. I enrolled back for A levels हैदराबाद में और वहाँ से करके मैं abroad चला गया on scholarship. मुझे A levels पे मेरे 3 A आए, 1 B आया. वहाँ से मैं abroad चला गया. क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स किया और फिर मास्टर्स इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिकॉज आई वाज परसूइंग इन फाइनेंस. आई हैड अ ह्यूज इंटरेस्ट इन इट. वो करके एंड आई जॉइंड मॉर्गन स्टैनली. इट इज़ एन फाइनेंशियल फर्म एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर. माई सैलरी वॉज रियली गुड. आई यूज टू गेट every quarter bonuses as well. So life was going good, but there's a sense of satisfaction that you don't get. मुझे वहाँ पे वो feeling आई. मेरी family में क्योंकि my father is a bureaucrat, my uncle is a bureaucrat as well. तो बचपन से एक देखते हैं कि जब मैं अपने अब्बू के ऑफिस में जाता था तो I used to see a lot of people coming in for help. वो वापडा में थे, he's retired now. तो जब लोग आते थे कोई मसला लेके, कोई इशू लेके, when we used to solve that problem in a minute or so or in 15-10 minutes, the sense of relief that they get, तो वो बड़ी सेटिस्फाई करती है. वो जो फीलिंग उस टाइम पे मैं देखता था अपने वालिद साहब के चेहरे पे जब आती थी कि यार कोई बंदा खुश होकर मेरी ऑफिस से जा रहा है, तो वो फीलिंग आई यूज़ टू से कि यार वो नहीं है. आई यूज़ टू स्टिल फील लाइक कुछ इनकम्प्लीट है. So then I started to think, yaar, I should go back to Pakistan and do CSS, joint services and get to help people. तो बस suddenly ऐसे ही plan बना वहाँ पे. I left my job, I left London, I left UK, came back to Pakistan. Straightforwardly मैं सीधा लाहौर चला गया for my training, तैयारी करने के लिए CSS की. तो वहाँ पे मैंने अपनी तैयारी शुरू की. I studied for 6 months, I think 6 or 7 months, and then I gave my first attempt. अच्छा, unfortunately I didn't qualify. I failed in English essay. 4 मार्क्स से रह गया मैं. मेरा टोटल स्कोर था 644, तो it was a good score, but I failed in essay. खैर I wasn't disappointed. My personality is kind of an optimist person. I'm always positive. I always think highly of everything. तो फिर मैंने जो है CSS की तैयारी की. मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ में बताऊंगा कि तैयारी के हवाले से देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स के जहाँ पे लोग और लड़के जो एस्पिरेंट्स जाते हैं वहाँ पे दे मिसकंसीव दीज थिंग्स. पहले तो स्पेशली सिंधी स्टूडेंट्स का मैं बताऊंगा क्योंकि आई वाज देयर, आई इंटरेक्टेड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट वाज सिंधी एज वेल.
वहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे टीचर्स भी, एंड आई वोंट बी नेमिंग द एकेडमीज़, लेकिन एक माइंडसेट था कि यार ये 3 बुक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे मुझे सर आईआर करनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस, यार ये 3 बुक हैं, यू गेट टू रीड देम, यू गेट टू रटिफाई देम, रटा लगाओ इसको, और देन यू विल बी गेटिंग हाई स्कोर्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये हो जाएगा। अच्छा, दैट वाज वेरी ऑड टू मी। मैं शुरू से लेके एक माइंड प्रोसेस है कि जब तक इंसान पढ़ के उस चीज़ को समझेगा नहीं, उसको डिस्कस नहीं करेगा, तब तक वो माइंड में बैठेगी नहीं, उसको आर्टिकुलेट जब तक नहीं कर पाएगा तो वो आगे से चलेगा नहीं। तो आई यूज़ टू टेल अदर्स एज वेल, और अपने आप को भी मैं ये चीज़ समझाता था कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती, ये आपको, हाँ, बुक इज़ टू लर्न, ठीक है, लर्न, यू गेट टू अंडरस्टैंड द नॉलेज एंड देन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए एक चीज़, और फिर वो गेट विद टू फ्लो ऑफ थॉट, फिर बंदा वो चीज़ लिखता रहता है। तो एक तो चीज़ वो हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको जो नोट्स का एक कल्चर आ गया है, वो भी एक बड़ा, लाहौर में मैंने देखा कि यार नोट्स का कल्चर है, बट नोट्स ये है कि वो आप बुक को ही कॉपी कर रहे हो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आई सॉ कि वो अकेडमी से जेके और फिर वापस आके, अच्छा आई वॉज इन वन ऑफ देम, क्योंकि आई यूज़ टू सी, बट आई माई लर्निंग प्रोसेस वॉज डिफरेंट। मैं अपना लर्निंग आपको बताऊँगा, पहले बताऊँगा कि वो मिस्टेक क्या थी जो मैंने देखी वहाँ पर और फील की। ये था कि वो बुक को ही एंड मल्टीपल नोट्स को कंबाइन करके एक चीज़ बना रहे थे कि वो नोट्स हैं। अच्छा, इन लंदन व्हाट आई लर्न वाज कि वहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में, इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ आई मीन, द लर्निंग स्ट्रक्चर वाज लाइक दैट कि एक लेक्चर होता था किसी भी चीज़ का, एंड देन यू हैव अ ग्रुप डिस्कशन। सो 2 आवर्स लेक्चर, एंड सेकेंड डे देयर वाज एन आवर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ दिस, लाइक सेम लेक्चर और फिर उसी का सेम ग्रुप डिस्कशन, बट देन आई थ्रू आउट माई लर्निंग प्रोसेस आई लर्नड कि जब आप कोई चीज़ वो 2 घंटे के लिए पढ़ते हो, वो अंडरस्टैंड आपने नहीं की, आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि यार टॉपिक ये था, और फिर जो है जब आप उस ग्रुप डिस्कशन में, और लेक्चर हॉल वॉज ऑफ 200 स्टूडेंट्स, जब हम ग्रुप डिस्कशन में बैठते थे वी वर 18, 15 to 18, जब वो बैठ के एक टीचर 1 घंटे में सबको ग्रुप डिस्कस किया करते थे, तो दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस। वो माइंड में बैठती थी कि यार क्या है। आई वुड गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल we'll go on international relations, Pakistan ke relations, how were they with America, how are they shifting towards China in the past, like in decades, like how did it shift, what was happening, how many episodes did it happen। ये आपको अंडरस्टैंड सिर्फ पढ़ने में एक बुक से नहीं आएगी, ये व्हेन यू डिस्कस इट विद लॉट ऑफ पीपल ना, लाइक माइंडेड पीपल, तो जब आप तैयारी करते हैं तब भी आपके जो 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप बनता है ना, तो यू शुड डिस्कस इन एवरी इवनिंग, जब आप इवनिंग में बैठते हैं गपशप करने के लिए, एज वी यूज टू डू इन लाहौर एज वेल, तो आई मीन यू शुड डिस्कस इट, दैट इज़ माई प्रायोरिटी कि एक चीज़ आपने पढ़ ली वो करें। अच्छा, थर्ड पॉइंट दैट आई नोटिस्ड वॉज कि वहाँ पे जो गाइडिंग स्ट्रक्चर है वो भी, इट इज़ अ बिट आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड ओल्ड कल्चर्ड और ओल्ड फैशनड और समथिंग, के फॉर एग्जांपल ये है कि यार जेंडर स्टडीज़ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब ये आई डोंट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। मेरा ये है कि यार मेरी काबिलियत क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। फॉर एग्जाम्पल द अटैम्प्ट द CSS दैट आई गेव, आई वॉज लाइक कि मुझे सब ने कहा कि यार इंटरनेशनल रिलेशंस लो, अकाउंटिंग सी एंड ऑडिटिंग ना लो, इट इज़ यार वो स्कोरिंग ही नहीं होती, वो बिल्कुल जो है वो आप नहीं स्कोर कर पाओगे। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने फ्रॉम द स्टार्ट यार की ही अगर अकाउंटेंसी है, मैं, मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जिसका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड उसका सब्जेक्ट अपना है, जिसमें वो पढ़ा हुआ है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है, ही शुड ऑप्ट दैट। नेवर थिंक के व्हाट पीपल आर सेइंग कि दिस इज स्कोरिंग दिस ईयर, दिस इज़ नॉट स्कोरिंग दैट ईयर, एंड अगर स्कोर करना है, टॉप में आना है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स लेने हैं। आई थिंक जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का मेथड है, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट एम आई स्ट्रॉन्ग एट, व्हाट डू आई हैव टू डू, हाउ कैन आई स्कोर इन दिस। तो मैंने जब अकाउंटेंसी ऑलरेडी ली थी, आई थिंक आई टॉप्ड इन दैट सब्जेक्ट, आई स्कोर्ड मोर देन 170 प्लस, which is very difficult out of 200। so I mean, ये तो मेरी पर्सनल, मैं सबको एडवाइस यही करता हूँ कि सब्जेक्ट सिलेक्शन शुड बी योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड योर ओन सक्सेसेस। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको कहा कि स्कोरिंग है और यार कब से स्कोरिंग चल रहा है, सबने हाई स्कोर्स लिए हैं, तो यू शुड ऑप्ट फॉर दैट।